This match is between AB's UP Warriors and GlobeLink Westar Shipping. The captain of GlobeLink Westar Shipping won the toss in electing to bat first. Not a surprising decision. Maybe the idea is put runs on the board and make it difficult for the side chasing under lights. Yes, obviously because floodlight is on now. बहुत ही अद्भुत नज़ारा सूरत की ये शाम आप सभी के नाम 10 PL की ये शाम आप सभी के नाम पेट्रोमन की ये शाम आप सभी के नाम इसका एक्सचेंज .net की ये शाम आप सभी के नाम पेप्सी की ये शाम आप सभी के नाम आकार चेन की ये शाम आप सभी के नाम स्मार्ट चेन की ये शाम आप सभी के नाम स्वागत है आपका। टॉस को जीता इस वक्त ग्लोबलिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने और पहले बल्लेबाजी देखिए हरेश फ्लड लाइट का इतिहास उठा के देखिए चेसिंग इतना आसान नहीं रहता और वो विकेट जहाँ पर गेंदबाजी के लिए काफ़ी सहायता है उस विकेट पे इतना आसान नहीं रहेगा चेसिंग करना। बहरहाल AB UP वॉरियर फील्डिंग के लिए और गेंदबाजी की कमान इस वक्त दी जा रही है गेंदबाज AB's UP Warriors owned by Mohammad Asif Abdul Salam Sheikh and GlobeLink Westar Shipping by Sumesh. Irfanul Haq open the bowling attack. Fast and furious bowler पहली गेंद के साथ पटकी भी गेंद की हुक करना चाहते थे इम्प्रोवाइज तरीके से। अंपायर मोहम्मद रफ़ी का तो अलग ही अंदाज है, दूर जाते हैं फिर वॉच करते हैं फिर अपनी जगह पे आते हैं, अंदाज अपना अपना 10 PL का अंदाज अपना अपना। इस वक्त 12वें खिलाड़ी मैचेस हमारे बीच शाहिद खान है हमारे कमेंट्री बॉक्स में एबीज के। इस मरतबा तान दिया आसमान में मिस टाइम स्ट्रोक गेंद के नीचे खिलाड़ी स्कायर बढ़िया जज किया वहां पर और पहला झटका लगा आउट हो गए तुषार रणदीवे। पहले मैच ये देखिए ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से ये शॉट खेला था हरीश but not easy in front of floodlight. Last one was a scare well taken by Ranjit. Yes, absolutely. Irfan is a fantastic bowler. We have seen how he generates the pace and bowls in good areas. Previous match, he was one of the contenders for the Man of the Match award. He took 3 wickets for just 3 runs. And that is a commendable job. And he's continuing with his good form, bowled in the perfect area. And when you are at the start as a batsman, yes, I can understand that it's a power play over and you have to go after the bowling. But you got to see a bowler who is performing well. Sometimes the smartness is just see off a good bowler who is in good form, is bowling good pace, and get off stay at the non-striker's end. Batsman committed a mistake and paying the heavy penalty for it. And now he has to go in the dugout and see what his friends are doing out in the middle. बिल्कुल इरफानुल हक विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए टॉलमैन वादी कश्मीर को बिलोंग करते हैं। दर्द ने मीर तकी मीर बना रखा है, मुझको इस इश्क ने कश्मीर बना रखा है। खेल की शुरुआत होती हुई इरफानुल हक नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। राहुल लोहार इस मरतबा कंट्रोल कट शॉट खेला है, पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है कवर पॉइंट पे। 1 रन से खाता खोलते हुए राहुल लोहार 1 रन से खाता खुलता हुआ ग्लोबलिंक वेस्ट स्टार शिपिंग कॉर्पोरेशन का 1 रन 1 विकेट। Yes, open the account with a shot at the deep point region. But wicket of the very second ball that puts pressure on the batsmen who are coming in, whether they are going to play the same way, the aggressive way in the power play overs, or we got to see that we rotate the strike, don't give away wickets. Important match here. AB's UP Warriors are already 1 up. They won their first match. अविनाश सामना कर रहे हैं इस मरतबा हल्के हाथों से बल्ले के फेस को खोला, डिपिश गली में खेला, स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज छोड़ बदलते हुए 2 पे पहुंचा स्कोर। ग्लोबलिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई आप देख रहे हैं
टेनिस दुनिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप 10 PL। And Globelink West Star Shipping had played that first match against Deepak Dada Pratishthan, where they had lost that encounter. इरफान उल हक इस मरतबा फिर हल्के हाथों से टैप करते हुए बढ़िया रणनीति वहां पर राहुल लोहार की। 1 रन से राहुल पहुंचे 2 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया 3 रन 1 विकेट। आउट होने वाले बस बैट्समैन थे तुषार रणदीवे, खाता नहीं खोल पाए। This is sensible batting. They are rotating the strike, understanding that man who played a very good knock, Tushar Randive, is back in the pavilion. It is the duty of Avinash and Rahul to build up a partnership here. इरफान उल हक इस मरतबा बहुत ही स्टाइलिश कवर ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे कारपेट के जरिए एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। पहला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया इरफान उल हक ने, जहां पर केवल 4 रन दिए और बड़ी विकेट तुषार रणदीवे की हासिल की। What do you think? I think this is the great overturn from Irfan ul Haq. And AB's UP Warriors are a very strong unit, not only in batting, bowling department, fielding is also pretty decent. You can see Irfan took up 3 wickets, but then Kamran comes, picks up 4 wickets and also awarded the player of the match. So such a strong bowling unit, and the batting of Globelink West Star Shipping has to make a point and think about how to go about against this strong bowling unit. Are they going to target the 4th or 5th bowler, or are they going to go for the onslaught maybe immediately after the 3rd or 4th over? Some sort of planning needs to be done against a strong unit of AB's UP Warriors. नॉर्थ एंड से कृष्णा मूर्ति को मोर्चे पे लगाया गया है। सूरत में इस वक्त बहुत ही सुहानी शाम है। कृष्णा मूर्ति कट करने की कोशिश, दूर से खेलने की कोशिश, दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। 1 रन आता हुआ, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। कुल मिलाकर स्कोर 5 रन। ज़्यादा दूर कर बैठे थे, हालांकि बल्ला ज़रूर चला दिया था बैट्समैन राहुल ने। इस मरतबा फिर से गेंद कट के बाहर निकली, इस मरतबा बीट हुए। थोड़ा लेट रिवेट रहा था बैट्समैन का। Well, I was listening to Kamran Khan's interview with the Voice of India, Harish Pandya sir. He was telling that we have got leather ball fast bowlers. We have kept them in our squad. And now I can understand, you can see the pace generated, the run up to the crease and getting the ball away from the left-hander. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, लॉफ्टेड स्क्वायर स्टर्नमैन पे बहुत जल्दी पहुंचे थे। क्या फील्डिंग की अंकित ने। 1 रन आता हुआ अविनाश रामगुडे के खाते में। 1 रन से धीमा स्टार्ट हम देख रहे हैं। ये देखिए अपर कट किया था बहुत खूबसूरत अंदाज से, लेकिन बहुत जबरदस्त फील्डिंग। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। Globelink West Star Shipping, I think considering they have lost the first match, they will be under more pressure as they have to win and stay in the race of that knockouts, because this is 3 groups and 5 teams in each group. Considering that you need to win at least 2 matches, to stay in the race. बिल्कुल, हर ग्रुप की टीमों को 4 मैचेस हर टीम को है। मोहम्मद रफ़ी ऑन फील्ड अंपायर और अंपायर करुणा हमारे ऑफिशियल अंपायर ऑन फील्ड। ओ बढ़िया गेंद नीचे रही थी, क्या एफर्ट है विकेट कीपर का। अपने आप को झोंक दिया था वहां पर, लेकिन लेग बाई का रन आता हुआ। रन कैसे आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं, रन आना ज़रूरी है। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 7 पे पहुंचा। ये देखिए शफल करके बहुत ही फाइन ग्लांस करना चाहते थे बैट्समैन राहुल लोहार। अब अविनाश सामना कर रहे हैं गेंदबाज कृष्णा मूर्ति का। गति परिवर्तन, बढ़िया ड्राइव, आंखों के नीचे खेला। मिड ऑफ पे खिलाड़ी। 1 रन आता हुआ। सिंगल्स में रन आ रहे हैं, कोई बड़ा स्ट्रोक पावर प्ले में नहीं लगा है। In fact, he has been bowling very well. He has been bowling his heart out and getting the ball away from the left hand and also from the right-handers.
bowling from the far hand. Both the bowlers have generated decent pace. And Globe League West are shipping had. This is the third match. Won one, lost one. इस मरतबा स्विंग कर दिया है, गेंद हवा में पड़ गया, रनिंग कैच और आउट हो गए बैट्समैन राहुल लोहार। क्या कैच पकड़ा है अंकित मोरिया ने भागते हुए, ये देखिए गजब का कैच। हालांकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जिनके पिछले मैच में बल्लेबाजी में था रस, वह है रवि बनारस। ये देखिए रनिंग कैच, कैचेस विनिंग मैचेस। It's absolutely a good catch, and I think the batsman also didn't time the way he would have liked or find the gap, finding straight to the fielder. Sometimes you bowl good balls, you don't get a wicket. Sometimes you bowl full toss, you get a wicket. That's how the game is. And this time, the luck going in towards the bowler's favor. Second wicket down at the score of 8. काफ़ी स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर टॉस जीत के बल्लेबाजी करती भी ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग कॉरपोरेशन। देखिए अभी तक काफ़ी दबाव में रखा है और राहुल लोहार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हम नहीं कह पाए कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। कृष्णा मूर्ति मुड़ते हुए सामने की ओर से नॉर्थ ईस्ट एंड से इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया, गेंद को जेंटल पुश इन कवर्स, एक्स्ट्रा कवर एंड दे थ्रू फॉर सिंगल। Yes, a single to finish this over is 9 for 2. Defensive shot, and with 2 wickets lost already in the second over, they have to go in the defensive mode. It's 9 for 2 in 2. पावर प्ले, पुअर प्ले साबित होता हुआ यहाँ पे टॉस जीत के जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया था ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने, वहाँ पर पावर प्ले में केवल 9 रन आए। देखिए अगर हम एबीज यूपी वॉरियर की बात करते हैं हरेश, तो उनके पास एक बॉलिंग पेस बैटरी का यूनिट है और वही कारण है कि काफ़ी कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं और कामरान खान लगातार अपने गेंदबाज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये देखिए गेम प्लान साफ है, दबाव और बढ़ाना चाह रहा है, इसलिए गेंदबाज हक को कंटिन्यू रखा गया है, इरफान उल हक। And also the fast bowlers in everyone's side, but they need to finish the innings also on time. 40 minutes given here for every team to complete that 8 overs, so they have to make it fast as well. नॉन पावर प्ले ओवर 4 खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं। इरफान उल हक तेज तरार गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर रवि बनारस ने, आउट हो गए सचिन बर्गे। This is sheer pace. Look at that. He was blind while making that shot because he was deceived there by the pace of the bowler. He never understood it. The ball came way too fast onto the back foot, but he had no choice. An easy catch here by Ravi Banaras. So if you can look at this bowler certainly is going to shine in years to come. Irfan Ul Haq from Kashmir. The way he is bowling, the way he's troubling the batsman. It's not that the batsmen are bad. It's just that the bowling is too good. क्या बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास स्टॉक में शॉर्ट पिच गेंदें चाहिए, यॉर्कर्स चाहिए। ये देखिए इतनी तेज गेंद थी, अपने आप से नाराज जरूर चले गए बढ़ गए, लेकिन कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं 10 PL, मौसम है मस्ताना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। 10 PL टेनिस क्रिकेट का वो फॉर्मेट है जिसे दुनिया का हर क्रिकेटर खेलना चाहता है और दुनिया का हर तमाशाई उसे देखना चाहता है। बैक टू क्रिकेट, नए बैट्समैन इस वक्त सौरभ दलवी जुड़ते हुए, क्या बॉलिंग कर रहे हैं इरफान उल हक। अब तक 1.1 ओवर 4 रन देकर 2 विकेट। सौरभ दलवी के लिए डगर इतनी आसान नहीं रहेंगी। 4 खिलाड़ी सर्कल में, इरफान उल हक इस मरतबा फ्लिक कर दिया है पैरों के सामने, पहले बाउंस पर गेंद डीप मिड विकेट पर, दूसरे की कॉल है और पूरा करते हुए बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट।
I think he played it nicely. A flick shot in the cow corner region, bowled fully here by Irfanul Haq. There are enough men in the deep. By the time they come, single, double was easily completed. And good running between the wickets, definitely. They require good running. Saurabh and Avinash. Avinash is playing on 3 or 4 balls and Saurabh is playing on 2. This is the first delivery that he faced. इरफानुल हक साउथ एंड से जाते हुए इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, गेंद हवा में, लेकिन क्या एफर्ट था वहां पर, झोंक दिया था अपने आप को फील्डर अमित ने, लेकिन मुश्किल अवसर, हाफ एंड टफ चांस आई थिंक. I think 100 marks should be given here for the effort. Although he could not take the catch, it was falling in front. But this is the standard that 10PL wants to see. This is the standard that everyone, all the spectators also want to see live. Highest standard of ground has been given. Wonderful stadium, Lal Bhai Contractor Stadium in Surat, and they need to give their wholehearted effort. इरफानुल हक इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे सीधे प्लेट से डीप मिड ऑन पे कामरान खान के पास 1 रन. बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है पूरे 10PL के मैचेस में. इरफानुल हक ने इस ओवर में 1.4 overs, 8 runs considered in 2 wickets. Excellent, fast and furious bowling from Irfanul Haq. Irfanul Haq राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ओह नेस्टी बाउंसर, लेकिन गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए. Well, I cannot call. Well, I think the bowler is unlucky over here. Just that he deceived the batsman with his pace. Once again, a short ball into almost the chest high rib cage of the batsman. Perfect bouncer, and he wanted to play that hook shot. Nowhere in position. Lucky there to get the leading edge and going over the head of the keeper for 4 runs. बिल्कुल आपने सही कहा. आपकी किस्मत जब खराब हो तो ऊँट पे भी आप बैठे तो आपको चूटी काट ले. इरफानुल हक क्या नेस्टी गेंद की थी उन्होंने. इस मरतबा फिर बढ़िया वापसी, रन देखना है पूरा होता हुआ लेग बाई का. ओवर 3 समाप्त होते हुए कुल मिलाकर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग कॉरपोरेशन कुल मिलाकर 18 रन और 3 विकेट. नॉट इनफ टोटल मेड बाय ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग आफ्टर 3rd over. Run to ball equation, like in 18 balls they made 18 runs and lost 3 important wickets. 10PL में आप सभी का हार्दिक स्वागत. What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. सुपर ओवर IPL में करने वाले कामरान. ओ माय गॉड, बहुत अच्छी गेंद थी. गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल था, कंट्रोल पुश किया मिड ऑफ पे, 1 रन. Yes, and although I've seen him and everyone followed Kamran in the start of his IPL career, today you can see the pace has decreased a little bit, but the commitment, the effort, and also the variations and the experience that he has gathered by playing in the top leagues all over the world has made him even better. कामरान खान, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है. ओ कट के अंदर की जानी भाई, क्या कीपिंग कर रहे हैं रवि बनारस. होल्डिंग अ क्लोज देयर. पहले बाउंस पर गेंद को उठाया था रवि बनारस ने. अगर हम एबीज यूपी वॉरियर की तरफ देखते हैं तो बॉलिंग साइड भी कंप्लीट है और कम से कम 5 स्पेशल बैट्समैन है उनकी टीम में. And what a time Kamran Khan is also having. He was adjudged the joint player of the tournament award in the triangular series that was held between Gujarat, Maharashtra and rest of India. And also the player of the match, picking up 4 wickets in the previous game.
इस मरतबा घूम के मारा है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद तेज आउटफील्ड पे सरक रही है, दूर से पहुंचे, फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है, 2 रन बनाते हुए अविनाश। So not only he is doing the job as a captain for AB's UP Warriors, but also he is doing a fantastic job for himself, getting wickets almost every match. And AB's UP Warrior with 1 win under the belt after their 1 game will be certainly upbeat to win this as well. कामरान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बैकफुट पे जाके कट किया, सीधा फील्डर के पास, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े। इसे कहते हैं आंखों आंखों में रन पूरा करना। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अविनाश रामकोटे, 8 गेंदों में 7 रन बनाए, कुल स्कोर 22 रन, 3 विकेट। The bowling is so tight. They are bowling according to the field, and the bowlers have found a rhythm. If at all batsmen have to do something different, they have to break this rhythm, do something different. Otherwise, they can go with the flow, and the target will not be much. ओ बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर वाइड यॉर्कर किया था और सौरभ दलवी के पांव नहीं चले थे। यहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। कामरान शॉर्ट थर्मेन, डिपिश एक वाइडिश शॉर्ट थर्मेन, एक कवर। इस मरतबा शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद बल्ले के अंदर लगी थी, 1 रन और आता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन बने यहाँ पर। ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग की केवल 23 विकेटें गिरी है, 3 काफ़ी दबाव में एबीज यूपी वॉरियर ने लाया है। समय हो चला है इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। ऑफिशियल पार्टनर आकार चैन, तो खेल की जब शुरुआत होगी। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. So it was an Akachin strategic timeout with 4 overs completed. It's 23 for 3. And to give further updates of this match, which is right now being ruled here by the bowling unit of AB's UP Warriors, is Awesome Hussain from Hyderabad and Ajay Karatha in the commentary box. धन्यवाद हरीश और धन्यवाद सिद्दीक। मौका भी है, दस्तूर भी है, ये सुहानी शाम रंगीन भी है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला, कांटेदार टक्कर यहां पर दोनों ही पक्षों के बीच। बहुत ही बढ़िया गेंद, जितना लंबा इनका कद उतनी ही उछाल वहां पर इन्हें प्राप्त होती हुई। और अद्भुत तरीके से वहां पर वाइड का इशारा देते हुए अंपायर मोहम्मद रफी मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर अजय खरात कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया आपका। नाजुक स्थिति है यहाँ पर ग्लोब लिंक्स वेस्ट स्टार की, यहाँ पर के दबाव में, और बहुत ही अच्छा कैच फ्लाई स्लिप की दिशा में एक और करारा झटका। जी हाँ, काफी गति के साथ गेंदबाजी करते हैं ताहिर भट्ट। देखिए जिस हिसाब से गति के साथ इनको उछाल प्राप्त हुई, वहां पर पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, बाहरी किनारा और सीधे
बॉय स्लिप के क्वाड्रेंट में कैच थमा बैठे। एक और झटका लगता हुआ, चौथी सफलता हाथ लगी है। और नए बल्लेबाज बबलू पाटिल, नामचीन बल्लेबाज, नामचीन खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट में। बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए आए हैं और सही मौका और सही दस्तूर में कहूंगा अजय, जब बबलू पाटिल आए हैं। ऐसी सिचुएशन इन्हें पसंद है जब थोड़ी सी कठिनाइयों में होती है, टीम आकर संभालते हैं पारी को। जी हाँ, तूफानी नदी में ये इनकी श्रेष्ठ तैराकी कई बार देखने को मिली है और आज भी नदी काफ़ी तूफानी नज़र आ रही है। सामने खतरनाक गेंदबाज ताहिर भट्ट, पहला ओवर है उनका, वाइड से शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद अतिरिक्त उछाल के साथ उन्होंने विकेट प्राप्त किया है। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, डाउन द ग्राउंड खेला उसे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उम्दा फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, बहुत ही खूबसूरत रहा। लेकिन जैसे ही मौके को गनीमत जाना और 2 रन चुराने में कामयाब हुए, स्ट्रेट अवे ऑफ द मार्क। ये खासियत है बबलू पाटिल की, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ना इन्हें पिछली विकेट का गम होता है ना अगली विकेट का डर। आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू करते हैं और वही यहाँ पर देखने को मिला इस गेंद पर। जी हाँ, अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं, अंडर प्रेशर भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं बबलू पाटिल। एक अच्छी पारी की उम्मीद है उनसे इस समय। अच्छी गेंद, एक और बार बहुत ही बढ़िया उछाल मिलता हुआ ताहिर भट्ट को। काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं अजय ताहिर भट्ट, और जो इनकी गति है मैं समझता हूँ इस टीम में शायद सबसे तेज गेंदबाज हैं वो। और बहुत कम गेंदबाजों को देखा है जो अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हैं, और ताहिर भट्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी हाइट और गति का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं और सही समय पर अपनी टीम को विकेट दिलाने के लिए जाने जाते हैं ये। गेंद हवा में जरूर है लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर, पहले कैच के लिए दौड़ रहे थे सामने की तरफ फील्डर टिप्स स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फिर देखा कि पहुंच नहीं पाएंगे, अपना इरादा बदला वहां पर अंकित मौर्य ने। और इसी बीच 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। बिल्कुल सही फरमाया आपने मौसम की, ये सबसे लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी इस समय मैदान में खास तौर पर, और शायद इस लीग के भी सबसे लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है ताहिर भट्ट। अपने हाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में, और वैसे भी ये विकेट जो अभी तक खेला है इसमें बाउंस बहुत अच्छा रहा है। लेग के काफी बाहर, वाइड होगा। जी हाँ बिल्कुल, दिशा से भटके, थोड़ी वहां पर यॉर्कर करने का प्रयास था, पैड को टारगेट किया था वहां पर ताहिर भट्ट ने, लेकिन थोड़े से दिशा से भटके और जिसके चलते एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर पे। अब बबलू ने शायद थोड़ा सा लालच दिखाया वहां पर, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर शफल कर चुके थे और लेग स्टंप दिख रहा था, उसको उड़ाने का प्रयास था लेकिन थोड़ी दिशाहीन हो गई गेंद। बहुत ही उम्दा गेंद, गति के साथ बीट किया वहां पर बबलू पाटिल को। आसान नहीं है, बबलू पाटिल पसंद करते हैं तेज गति के गेंदबाजों को खेलना, लेकिन यहां पर काबिल तारीफ गेंदबाजी होती हुई ताहिर भट्ट द्वारा। देखिए किस हिसाब से बल्ले के बाजूक से निकली वहां पर, यदि हल्का सा भी किनारा होता तो विकेट गंवा बैठते वहां पर बबलू पाटिल। यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि लेंथ बहुत अच्छी लेंथ थी, थोड़ा सा आगे रखा था, फ्रंट फुट पर खेलने वाली गेंद को बैक फुट पर खेलना चाहते थे। इस बार किनारा लगा लेकिन पूरी तरह से शायद कैरी नहीं हुई। रन चुराने का प्रयास और रन चुराते हुए सिंगल कंप्लीट। डूबते को तिनके का सहारा, किनारा जरूर लगा था लेकिन वहां पर भाग्य ने सहारा दिया बबलू पाटिल को। देखिए टप्पा खाकर नीची रही इस बार गेंद, और बढ़िया एफर्ट मैं कहूंगा विकेटकीपर द्वारा। रवि बहुत ही चुस्त फुर्तीले वहां पर नजर आए रवि। 5वां ओवर होता हुआ समाप्त, 5वें ओवर के चलते 30-4 विकेट के नुकसान पर। कमाल का प्रदर्शन इस मुकाबले में अभी तक। इस यूपी वॉरियर्स का पहला मैच भी जिस तरह से इस टीम ने खेला और उसको जीता, जबरदस्त अंदाज उनका नजर आ रहा है। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में बड़ी तगड़ी टीम नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर कोई भी टीम कमजोर तो नहीं है, लेकिन कागज पर केवल मजबूत होने से कुछ नहीं होता है, आपको मैदान में भी वो मजबूती दिखानी होगी।
बिल्कुल सही फरमाया अजय। कागज पर तो आप जितने चाहें उतने निशान लगा सकते हैं, लेकिन जो मैदान पर आकर अपनी जलवा, अपना हुनर दिखाएं, वही उस रात का, वही उस शाम का हीरो कहलाता है। कामरान खान कप्तान खुद आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। सामना करेंगे बबलू पाटिल। एनपीएल में एक ऐसा टैलेंट देखने को मिल रहा है जिन्होंने आईपीएल की तारीख में पहला सुपर ओवर किया था। बहुत ही बढ़िया शॉट, दिशा दिखाई, उसे स्विंग के साथ खेला वहां डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। थोड़े से फंबल हुए फील्डर, और ये इनकी खास बात है बबलू पाटिल की, जब फील्डर फंबल होते हैं तो ये फंबल नहीं होते वहां। एक रन को दो, दो को तीन में तब्दील करना बखूबी जानते हैं बबलू पाटिल, और इसकी ज़रूरत भी है। रन्स पहले 5 ओवर्स में आए नहीं है ज़्यादा, मात्र 6 रन प्रति ओवर्स के हिसाब से बल्लेबाज खेल पाए हैं। तो यहाँ पर जो भी मौका मिलेगा उसको बुनाना होगा बल्लेबाजों को। ऑस्टम के बाहर इस बार गति के साथ बीट करने का प्रयास था। तेज गति की गेंद फेंकना चाहते थे कामरान, लेकिन दिशा से भटके ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइड अंपायर का इशारा। देखिए जब से आए हैं बबलू पाटिल स्कोरबोर्ड को काफी बिजी रखा है सिंगल्स और डबल्स के चलते। हालांकि बाउंड्री अभी तक आई नहीं है इनके बल्ले से, लेकिन जितना सेट होंगे उतना ही घातक साबित होंगे अपोनेंट के लिए। बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद। इस बार चकमा जरूर दिया था कामरान ने, लेकिन यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ। ये कैच ड्रॉप हुआ है या फिर मैच ड्रॉप? शहबाज अहमद गेंद के नीचे थे, बड़ा ही सरल अवसर था। शॉट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे हैं, टॉप एज हुआ, और इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। 10PL जैसी बड़ी प्रतियोगिता में वो कुछ ऐसे दिखा रहे हैं शायद उनको गेंद दिखी ही नहीं, कंप्लीटली लॉस्ट कर गए गेंद को, लेकिन यहाँ पर बहाना तो नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल सरल अवसर था ये। या थोड़े से निराश भी नजर आए वहां पर कामरान, और होंगे भी क्यों नहीं। बड़ी मछली को फांसने का वहां पर जाल बुना था कामरान ने। बबलू पाटिल की विकेट थी, काफी बड़ी विकेट मैं समझता हूं। बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लैश किया, और इतना बखूबी स्लैश किया कि गेंद बाउंड्री लाइन को जा रही थी, लेकिन उम्दा फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के इरफान ने। Thank you so much, commentary box. On behalf of SkyExchange.net and Petroman, we welcome commercial manager Usman at the venue. Usman bhai, assalamu alaikum bhaijan. Yeah, you are a commercial manager, sir. Welcome. Thank you so much. Paging for 2 teams. SJ Group of Companies and Naxalis Oil and Gas. किस्मत के धनी यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, ऑफ द बैट, जीवन दान भी मिला, चौका भी मिला। हालांकि ये कैच लपकना तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि थोड़ी आगे गिरी थी गेंद विकेट कीपर के इनसाइड एज लगा था। फ्रेंच कट, बाउंड्री जरूर बचा सकते थे विकेट कीपर, और कहीं ना कहीं रन्स थोड़े लीक हो रहे हैं पिछले ओवर से। पिछले ओवर में भी कुछ मिसफील्ड्स देखने को मिले थे, इस ओवर में भी मिसफील्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसका फायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। जी हाँ, बिल्कुल उठाएंगे भी क्यों नहीं, जबकि स्कोर बोर्ड आप देखें तो 40 के आसपास 4 विकेटें अभी तक गंवा चुकी है। ग्लोबल लिंक, वेस्टार शिपिंग एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर उतरे हैं मैदान पर बबलू पाटिल। उनका बखूबी साथ देते हुए अविनाश, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, काफी हद तक परेशानी होती है गेंदबाजों को, लेकिन जिस हिसाब का यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है कामरान खान का, वो आसानी के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं ऐसे डुओ को। आगे फेंकी हुई गेंद हवा से बातें करती हुई, फील्डर आएंगे उसके नीचे, और बहुत ही बढ़िया जजमेंट होते होते रह गया वहां पर। एक और जीवन दान, आज किस्मत लिखा कर आए हैं बबलू पाटिल। जी हाँ, किस्मत के धनी नजर आते हुए। हालांकि किस्मत की बात होती है, लेकिन आज किस्मत
बबलू पाटिल के साथ है, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। कप्तान कामरान ने अपने जाल में उनको लगभग फंसा ही लिया था, लेकिन ये देखिए फील्डर गेंद के नीचे तो बहुत अच्छी तरह से पहुंचे थे, लेकिन गेंद को हथेलियों में रख नहीं पाए और आखिरकार अपने शरीर का संतुलन भी थोड़ा सा गवा दिया वहां पर फील्डर ने। फील्डर थे गेंद के नीचे अमित यादव। इस तरह की गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है। यहाँ पर किसी भी बल्लेबाज को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। 42 पर 4। पेप्सी और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। रिमाइंड होके खेलो यार, नो टेंशन। बड़ा ही घटनापूर्ण ओवर रहा पिछला ओवर और आखिरकार थोड़े खर्चीले साबित हुए कामरान। हालांकि गेंदबाजी में तो कोई दुश्वारियां नहीं थी, कोई गलतियां नहीं थी, मैं समझता हूँ। उन्होंने मौके निर्माण किए थे, फील्डर्स का साथ जो चाहिए था कप्तान को वो मिला नहीं। गोरिल्ला के साथ स्कोर पोर्टल 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। किस्मत भी दलेरों का साथ देती है। यहाँ से फोटो ले। किस्मत भी दलेरों का साथ देती है। अजय वहां पर चांद को अपनी हथेली पर रखकर बड़े शॉट्स लगाने का मन बनाया है बबलू पाटिल ने अपनी टीम के खातिर, और 2 जीवनदान उन्हें मिलते हुए ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये एक बढ़िया मुकाबला रहेगा ताहिर भट्ट और बबलू पाटिल के बीच। दोनों ही जाने माने खिलाड़ी, एक तरकश से तीर निकालना जानते हैं तो दूसरे उसको बाहर पहुंचाना भी जानते हैं। बढ़िया गेंद, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, ऑलराउंड क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यहाँ पर 10PL में। जी हाँ, फुलर लेंथ की गेंद थी, यॉर्कर का प्रयास था वहां पर। हालांकि पूरी तरह से वो सटीक यॉर्कर तो नहीं थी, लेकिन पेस है उनके पास, और जब आप अच्छे पेस के साथ फुलर लेंथ की गेंदबाजी करते हो तो उस गेंद के नीचे घुसकर उसको लॉफ्ट करना उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए। अविनाश रामगोड़े सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, अभी भी डटे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद, पुल करने का प्रयास था, गति के कारण यहाँ पर बीट हुए। गति में मिश्रण करना भी जानते हैं ताहिर भट्ट। हालांकि इनका स्ट्रॉन्ग जोन है कि तेज गति के साथ बीट करते हैं, लेकिन इस बार धीमी गति की फेंकी हुई गेंद, इसके चलते चकमा खा गए वहां अविनाश। बीजिंग कैप्टन SJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए एक बार फिर से दाद देनी होगी यहाँ पर ताहिर भट्ट की। मैन विद गोल्डन आर्म, जादूगर है, अपनी कलाइयों का, अपनी उंगलियों का जादू यहाँ पर बिखेरते हुए। एक और लेग बाई का इशारा अंपायर का। यहाँ पर मैं SJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर आए। पेजिंग यू द कैप्टन ऑफ SJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत ही बढ़िया गेंद, खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग किया, 1 रन चुराने में कामयाब। दूसरे रन की कोशिश, थोड़े से फंबल हुए, मिसफील्ड हुई वहां, और जिसके चलते ऐसे मौके नहीं चुकते हैं बबलू पाटिल की तरफ से। 2 रन आसानी के साथ चुराने में कामयाब। कल का पहला दिन जो खेल हमने देखा औसम, उसमें फील्डिंग का स्तर बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज कई सारे खिलाड़ियों द्वारा हमने मिसफील्ड्स देखे हैं, आसान से कैचेस ड्रॉप होते हुए देखे हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? यहाँ भी की अगर बात करें तो आप, मैं समझता हूँ फ्लडलाइट्स का भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते। और हालांकि आप देखें तो कल के मैचेस की तुलना की जाए तो आज प्रेशर टीमों पे थोड़ा ज़्यादा बनता हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंच रहा है वैसे वैसे निश्चित रूप से फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में प्रवेश करने की वहां पर जो सोच है टीमों की वो बढ़ेगी, और उसके चलते प्रेशर भी थोड़ा सा बिल्डअप होता रहेगा। क्योंकि 10PL का प्लेटफॉर्म है, आपको जितना हो सके उतना अपना पूरा 100% एफर्ट देना होता है। इसके चलते थोड़े से फंबल हो रहे हैं फील्डर्स यहाँ पर। जी हाँ, इस टूर्नामेंट के लिए अंडर फ्लडलाइट्स उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार लीडिंग एज गेंद हवा में है, कैच की ज्यादा संभावना वहां पर नहीं बन रही थी। उसको समझते हुए थोड़े रुक गए कामरान खान, और गेंद को रोकने में ही उन्होंने धन्यता मानी। 2 रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई बीच मैदान में।
ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग के लिए 50 पर 4। या थोड़े से वहां पर जस्ट शॉट नो मैंस लैंड पर जा गिरी गेंद। हालांकि थोड़े से चुस्त फुर्तीले खिलाड़ी है जरूर वहां पर कामरान, लेकिन सही समय पर पहुंच नहीं पाए। पूरी तरीके से मेहरबान है आज किस्मत ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग के बल्लेबाजों पर। गेंद हवा में जा रही है, गेंद लपक नहीं पा रहे हैं फील्डर्स, और साथ ही साथ नो मैंस लैंड पर भी गिरती हुई वहां। कैप्टन ऑफ HA ग्रुप ऑफ कंपनीज पेजिंग फॉर द कैप्टन ऑफ SJA ग्रुप ऑफ कंपनीज। What a shot! What a swag! Pepsi, और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग। आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहले 5 ओवर्स में सिर्फ 30 रन बने थे और लगातार विकेटें गिर रही थी, लेकिन विकेटों का पतझड़ रोकने में कामयाब हुए हैं पिछले 2 ओवर्स में अविनाश रामगुडे और बबलू पाटिल। पिछले 2 ओवर्स में 20 रन भी आए हैं और एक फाइटिंग टोटल की तरफ जरूर इस समय बढ़ रही है ग्लोबलिंक वेस्टार। जी हाँ, गेंदबाजी में भी परिवर्तन, मोहम्मद अली को गेंद सौंपी है कामरान खान ने, कप्तान अपनी टीम के। देखना होगा इस आखिरी ओवर में, इस 6 गेंदों में कहां तक स्कोर को ले जा पाते हैं बबलू पाटिल और उनके साथ अविनाश। बहुत ही बढ़िया गेंद, हवाई फायर, आसमान में जाती हुई गेंद और नीचे उसके फील्डर इस बार नहीं चूकेंगे। जाना होगा बबलू पाटिल को वापस पवेलियन की ओर। अब तो बड़े स्ट्रोक के सिवा बबलू पाटिल के पास और कोई चारा भी नहीं था। स्ट्रोक में ऊंचाई काफी ज्यादा रही, स्विंग किया था, अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक था। मिड विकेट को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन अंकित मौर्य वहां पर मौजूद, मौका बना और उस मौके को उन्होंने बुना लिया। बहुत अच्छा कैच। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दरियाओं को तो छोड़ दिया था वहां पर कैच के रूप में, लेकिन समंदर को अब वहां पर पकड़ लिया है फील्डर ने बबलू पाटिल, जो कि काफी घातक साबित हो सकते थे। आखिरी 6 गेंदे यदि वो टिक जाते वहां पर तो शायद इस मैच का नक्शा कुछ और होता। 12 रन बनाकर वापस पवेलियन को लौटे बबलू। ये बची हुई 5 गेंदें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के दृष्टिकोण से, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 60 प्लस टोटल ज्यादातर चेज हुए नहीं है। एक ही मुकाबला हुआ है मेरे ख्याल से जिसमें 60 प्लस टोटल चेज हुआ है, 78 रन चेज हुए थे। शॉट गेंद पुल किया है, फिर से कैच का मौका और फिर से अंकित मौर्य गेंद के नीचे, और इस तरह के आसान से कैचेस वो ड्रॉप नहीं करते हैं। एक और झटका लगता हुआ, 2 बैक टू बैक। दो बैक टू बैक सफलताएं दिलाई है, हैट्रिक के कगार पर खड़े हैं वहां पर मोहम्मद अली। क्या ये इस टूर्नामेंट की
यहाँ पर मोहम्मद अली को। इतना बढ़िया ओवर, हालांकि अगर वो आप एक छक्का छोड़ दें तो 2 सफलताएं इस ओवर से मिली हैं मोहम्मद अली को। आखिरी गेंद, क्या ये बड़ा शॉट होगा? क्या एक बढ़िया फिनिश देने में कामयाब होंगे अविनाश? क्या एक ऐसा स्कोर, ऐसा टारगेट खड़ा करने में कामयाब होगी जिसे डिफेंड कर पाएगी ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग? लो फुल टॉस गेंद, बढ़िया गेंद मैं कहूंगा। बाई अंपायर का इशारा, 1 रन के चलते इस ओवर को किया समाप्त, इस पारी को किया समाप्त मोहम्मद अली ने। बहुत ही सफल ओवर साबित होता हुआ 58 पे 6। काफी खुश रहेंगे इस समय एबीज यूपी वॉरियर्स के कप्तान और उनके समर्थक, जिस तरह से उनका बॉलिंग एफर्ट रहा है। जरूर थोड़ी बहुत रिकवरी आखिर के 2-3 ओवर्स में बल्लेबाजों ने भी की। एक समय तो लग रहा था कि 50 तक भी पहुंच नहीं पाएंगे, जब 24 पर 4 विकेट गिरे थे और काफी धीमी गति से रन्स बने थे। जी हाँ बिल्कुल, बबलू पाटिल ने आकर थोड़े से रन जोड़े और उसके बाद अविनाश ने एक थोड़ा सा फिनिशिंग टच, जिसे हम कहते हैं जब आप बिरयानी के साथ थम्स अप का जो मजा लेते हैं, वो वाला फिनिशिंग टच यहाँ पर अविनाश ने दिया। ये हाईलाइट देख सकते हैं आप, जो विकेट्स गिरी हैं वहाँ पर ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग की। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी, ताहिर भट्ट गति के साथ, बाउंस के साथ, अतिरिक्त उछाल के साथ वहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाजों को उन्होंने। भाग्य का भी साथ बखूबी मिला यहाँ पर, एड्स के साथ भी चौके बटोरे हैं बल्लेबाजों ने। देखिए शुरुआती 4 ओवर्स में फील्डिंग लाजवाब रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ गलतियां हुई। विकेट कीपर ने शुरुआत में अच्छे कैचेस लग लेकिन ये बाउंड्री उनके हाथों से निकल गई थी। उसके बाद भी स्लॉपी फील्डिंग देखने को मिली थी। अंकित मौर्य हालांकि छाए गए रहे यहाँ पर, डीप मिड विकेट पर 2 अच्छे कैचेस लपके उन्होंने। हैट्रिक का मौका बना था और काफ़ी इवेंटफुल ओवर भी रहा ताहिर भट्ट का। अपील भी हुई थी हैट्रिक गेंद पर और उसके बाद रिव्यू भी लिया गया, लेकिन बैट्समैन नॉट आउट थे। अविनाश ने ये छक्का जड़ा आखिरी ओवर में, बस वही एक बड़ा स्ट्रोक अंतिम ओवर में आया। अंतिम ओवर भी काफ़ी सफल साबित हुआ मोहम्मद अली का, जिसमें 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए और मात्र 6 रन दिए थे। 2 रन्स मेरे ख्याल से लेग 22 के जरिए बने थे। तो कुल मिलाकर जो रन्स बने हैं 58-59 की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए एबीज यूपी वॉरियर्स के सामने। जी हाँ बेशक, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार ओवर रहा था आखिरी ओवर। 2 सफलताएं दिलाई, फिर एक बढ़िया छक्का वहाँ पर अविनाश के बल्ले से भी देखने को मिला, जो कि एक अच्छा स्कोर मैं कहूँगा खड़ा करने में कामयाब हुई है ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग। देखना होगा दूसरी इनिंग में क्या इस लक्ष्य को पार करने में कामयाब होती है। Boss, texting them. Boss, texting them. Boss, texting them. एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग।
लंबू उसने चालू किया। अच्छा 2 बार चालू किया तभी उल्टा बोलता कामरान ने सुना लगता है कामरान ने। वापस से आपका स्वागत है इस मैच के दूसरे भाग में, सेकंड इनिंग्स में, और साथ ही साथ मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या जी। कॉम्बॉक्स में आपका स्वागत है। Thank you so much. Good evening, friends, and you're watching SkyExchange.net presents a 10PL Season 4 powered by Petroman. And we are thankful to AB's UP Warriors owner Mohammad Asif Abdul Salam Sheikh. And we are also thankful to Global Link Westar Shipping owner Sumesh. First delivery, what a beautiful delivery, and that's a golden duck. Wicket of the very first ball. Sensational start by Global Link Westar Shipping. जी हाँ, एक ड्रीम स्टार्ट मिलती हुई यहाँ पर ग्लोबल लिंक वेस्टार शिपिंग को। क्या ही कहने, क्या ही अंदाज है इस गेंदबाज का। आते ही बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है और आते ही चलता क्या वहां पर बल्लेबाज को सलामी। बल्लेबाज वापस पलटते हुए डगआउट में मौजूद इस समय। What a start by Vishal Nigot. He's one such guy who keeps claiming scalps at regular intervals, and what a start for him. This morning also he was on song, and new man in is Ranjit. Ranjit has travelled all the way from Uttar Pradesh for this tournament. Ravi Banaras, Ranjit, a lot of Krishna Murthy. These are the guys who have travelled from Uttar Pradesh to Gujarat. And what a sensational start for Vishal Nigot. Such a nippy customer. I just imagine what would have happened if he would have been a leather ball cricketer. The way he pitches his ball, the way he creates that angle, that was shaping away from the right-hander and brilliantly caught by Avinash Ramgude behind the stumps. 0 for 1. यहाँ जैसे कि आपने बात की लेदर बॉल की, तो आज जो शुरुआत मिली थी भारत को भी, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी ने जो शुरुआत दी थी वो काबिले तारीफ। तेज गति की गेंदबाजी करते हैं दोनों भी, और उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया यहाँ विशाल ने। Trying to play slowly, and he threads the gap between the two fielders. Will this be 4? No. I think Global Link Westar Shipping fielders are running for their life. They know that they are defending a small total and they are all charged up with a wicket of the very first ball. But then a smart placement and they start with a couple of runs. जी हाँ, बिल्कुल जितना लक्ष्य की अपेक्षा कर रही थी ग्लोबल शिपिंग उतना वहाँ पर मिला नहीं, लेकिन एडी चोटी का जोर जरूर लगाएंगे यहाँ पर डिफेंड करने के लिए इस स्कोर को। बढ़िया गेंद खूबसूरती के साथ खेला उसे शॉर्ट कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। सो एक खुश खबर है, कल की तरह आज भी हमारे स्टैंड में जो पब्लिक जब डीजे म्यूजिक बजाएगा डांस करेगी, बेस्ट डांस को एक स्पेशल गिफ्ट आज भी रहेगा। सो लेट्स सी स्कोर राइट नाउ 3 chasing 59 AB's UP Warriors. They got to play like warriors. They need to use their bats like swords and go ahead and attack brutally in order to chase down 59. On the other end, Vishal Nigot, a determined, fast and furious bowler, steaming in. That's a fuller line delivery, and what a slap that was. But brilliantly stopping that violent cover drive, and they will go for 2. बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ हरीश जी। जैसे कि आपने कहा चाबुक की तरह यहाँ पर चलाना होगा अपने बल्ले को, क्योंकि 59 रन का लक्ष्य छोटा लक्ष्य नजर आता है, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कई टीम धराशायी हो जाती है। डेंजरस टोटल होते हैं छोटे टारगेट्स, लेकिन उसको जितना जल्दी आप पढ़ सकें, जितना जल्दी उसका जवाब निकालने में कामयाब होंगे, आपको उतनी ही आसानी होगी इस टारगेट को चेस करने में। So score finally on 6. Vishal Nigot once again
Well, if you are bowling anything less than 10 runs in power play, I think in my eyes he is definitely a decent bowler, because one odd boundary and 6 can easily come the way cricket is being played these days. But so far just 6 runs on the board with 1 wicket. Trying to tap this delivery and a single there. Good start for Ranjit, and at the end of first over the score reads 7 for the loss of 1. बहुत ही बढ़िया ओवर साबित हुआ है। एक अच्छी स्टार्ट दी है वहां पर विशाल ने, एक विशाल विकेट अमित की जो चटकाई थी, एक सफलता दिलाई है। ड्रीम स्टार्ट हम कह सकते हैं इसे, लेकिन इस मोमेंटम को क्या आने वाले गेंदबाज बरकरार रखेंगे? क्या इस दबाव को जो विशाल ने बनाया है, इस दबाव को आगे ले जाने में कामयाब रहेंगे? देखना काफी दिलचस्प होगा हरीश जी। And one more thing, we have been seeing constant totals of 70 plus in the morning session, but come the evening session, and now probably not because of dew, but definitely because of lights and the moisture, no air, I think the scores will hover around 50 to 60, I believe. यहाँ बिल्कुल वो एक कंडीशंस की जो आपने बात की है वो बिल्कुल सही बात की है। कंडीशंस ज़रूर मैटर करती हैं, खासतौर पे जब शाम में जब के फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी वहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके चलते रुक कर आती है गेंद बल्ले पर। So Nihal Tusamat, what a match for him in the morning. 2 overs, 2 runs and 2 wickets. He's going to bowl to the batter Ranjit. Oh, what a delivery that was. Slanting away from the channel and collected neatly behind the stumps by Avinash Ramgude, popularly known as Pappu. सुबह जो गेंदबाजी रही है निहाल द्वारा, 2 गेंदें, 2 सफलताएं दिलाई, 2 रन खर्चे और 2 ओवर इन्होंने किए थे। मैं समझता हूं कि एक बेंच मार्क, एक ट्रेड मार्क, एक पार सेट किया है यहाँ पर निहाल ने गेंदबाजों को। Now again hitting the rib cage, but this time delicately placed it behind the square, and a single was always there as Bablu Patil stops the ball and gives it back to the bowler. The score moves on to 8 for the loss of 1 wicket. Man out, Amit, who got out for 0. And right now Ranjit and Ankit, they are the batter. And now this time pulled away beautifully in the arc, out of the park, and that's a fabulous 4. बिल्कुल सुबह के मैच में निहाल हावी हुए थे जरूर बल्लेबाजों पर, लेकिन इस बार धाबा बोल दिया है वहां पर अंकित मौर्य ने। मोर्चा वहां पर जो संभाला था निहाल ने उसको मोड़ा है और चौका बटोरा है इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 12 for 1, once again a pull shot, and no one will be able to run for that. That was dispatched like a courier, and that's a glorious pull shot, 4 runs. Ankit Maurya has a very unique grip, you know, the way he holds his bat. Normally, your left hand would be the upper hand and right hand would be the bottom hand. But if you look at his batting stance, and when the cameraman will show his batting grip, he has a very unusual batting style, and yet he is successful. So his grip and the way of holding the bat may not be attractive, but his batting is definitely effective. जी हाँ, बिल्कुल आसान नहीं होता है इसी ग्रिप के साथ बल्लेबाजी करना। हर कोई बल्लेबाज ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकता जो अंकित मौर्य कर रहे हैं। Nihal banging it short, and this time trying to go for that switch it. Nihal Tusamad is an intelligent bowler. Although he is young, but he has got a mature head on the young shoulders, and he realized his mistake and bowled a good delivery this time, and it's a dot ball. जिस हिसाब से अभी स्टैंस बनाया था वहां पर अंकित मौर्य ने, मानो ऐसा लग रहा था कि प्रपोज कर रहे हैं गेंद को, लेकिन उस प्रपोजल को नकारते हुए निकल गई गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। Now that's a wide ball given by umpire Mohammad Rafi. Well, Mohammad Rafi
if Joel Garner is known as Big Bird, Mohammad Rafi is known as a medium bird, the way he spreads his wings. जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इन एग्जाम्पल्स की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ. मैं आपका फैन हूँ इससे जो आप एग्जाम्पल्स देते हैं हरीश जी. At this time, not a very comfortable position to play that shot. Nevertheless, they get a single, but that was not confident for sure. And we come to the end of power play overs. At the end of 2 overs, the score is 18 and they need 41 runs in remaining 6 overs. What a shot! What a swag! Pepsi, अब और भी ज़्यादा refreshing. बॉस टेक्सटिंग दे. एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज. यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी. तुम भी आओ ना. So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग. YP Unleash Your Potential and venue partner SDCA, that's Lalbhai Contractor Stadium. We have august presence of Mohammad Ashraf Ismail, one of the core committee members and a proud owner of Royal International Technology LLC Dubai. And with us, we have got the local boy, Surat no Apdo, Pradeep Patil, and બીજી બાજુ આપણા જ ગુજરાતનો અફઝલ સિંધી. ભલા આપણા બે ગુજરાતી ભાઈઓ વચ્ચે રમત રમવાની ભાઈ મજા આવે. એક બાજુ ઘારી ને એક બાજુ લોચો છે આજે. हाँ तो आइए मोहम्मद अशरफ इस्माइल साहब, आपके शुभ हाथों से टॉस होगा. टॉस कॉइन आपने देखा हुआ है, इधर 10PL और पेट्रोमैन, और ये सिक्का इसके ऊपर उछलेगा. पेट्रोमैन इज द कॉल एंड 10PL इट इज. आओ पाटिल. પાટીલ મહારાષ્ટ્રમાં જઈએ તો એમ કહેવાય પાટીલ સા નાદ કરાયસા ના હે, અને ગુજરાતમાં જો આવી જાય તો પાટીલ કે હવે તો હું આજે ભૂક્કા ખોલાવી દેવા. તો પાટીલ શું ડિસિઝન લીધેલ છે? અમે બેટિંગ કરશું. ફર્સ્ટ અમે વિચારેલું છે કે અહીંયા ટાર્ગેટ ચેસ નહીં થતું કોઈનાથી, તો અમે પણ એના હિસાબથી ગયા છે. પહેલાં અમે બેટિંગ વધારે 60-65 રન કરવાનું. તમે અફઝલભાઈની સામે બી રમેલા છો, એમની સાથે બી રમેલા છો, તો મેદાનમાં કોઈ દોસ્તી નિભાવવાના છો કે ડાયરેક્ટ બોલ આવશે તો મેદાનની બહાર મારા? એ તો ફ્રેન્ડ્સ તો અમે છે જ, પણ મેચમાં સામે સામે હોય તો કોઈ ફ્રેન્ડશિપ એવી ચાલતી નહીં. હા આવું અફઝલભાઈ. અફઝલભાઈ પહેલી મેચ બહુ સારી રહી અને કમ્ફર્ટેબલી તમે જીત્યા, પરંતુ આ સારી ટીમ છે અને પહેલાં બોલિંગ આવી છે. હવે ગઈકાલે પણ ડ્યુ નહોતું, આજે પણ ડ્યુ જેવું કંઈ લાગતું નથી, પરંતુ છતાં તમને એવું લાગે છે કે જો તમે ટોસ જીત્યા હોત તો તમે બેટિંગ લીધી હોત કે બોલિંગ લીધી હોત? અમે બી બેટિંગ જ કરત, કારણ કે અહીંયા ચેસિંગ પર રમવું અઘરું છે. ચેસ બીજા બેટિંગમાં ચેસ કરવા એટલે બહુ મુશ્કેલ છે. 60 રન થઈ જાય પછી બી પ્રેશરમાં રમવાનું આવે છે, જે હિસાબે વિકેટ ને ગ્રાઉન્ડ છે હિસાબે. અને અફઝલભાઈ, સુરતની ઘારી અને લોચો બે ફેમસ છે, એમાંથી તમને શું ગમે છે? ઘારી ગમે છે? તો આજે ઘારી ખાવા માટે તમારે રમત બતાવવી પડશે સારી. તો ટોસ થઈ ગયેલ છે ભાઈઓ, અને એસજે શિપિંગે ટોસ જીતીને પહેલાં બેટિંગ લીધેલ છે. પહેલાં બોલિંગ કરશે નેક્સેલિસ ઓઇલ એન્ડ ગેસ. આવો જઈએ હવે સીધા આપણે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં, જ્યાં મારા મિત્ર અભિજીત પવાર અને ઓસામા હુસૈન રેડી છે. ધન્યવાદ. It has been a big wicket for AB Kamran, the big man, the big fish in the hut. What an amazing wicket this has been. Prathamesh, the man who has given the breakthrough for the team. 2 wickets in a row. 40 runs required in 34 balls.
And I welcome my co-commentator in the commentary box, Abhijit Pawar, a well-known voice from all the way from Mumbai. Yes, that was an important breakthrough. बहुत ही बड़ी विकेट गवाई है एबीज यूपी वॉरियर्स ने। अहम मुकाबला है, 34 गेंदों में 40 की आवश्यकता। एक कड़ा संघर्ष कर रही है ये दोनों ही टीमें। जरूर जिस तरह से प्रथमेश गोसावी इन्होंने स्टार्ट की है ओसामा, दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। Exactly, indeed, it's a dream start for Prathamesh. Earlier it was Vishal who has given a great start to the team, and he's the one, Prathamesh, who is carrying forward the momentum. Low full toss delivery this time, nicely played towards the mid-off region. Quick run taken on that occasion. Beautiful piece of running between the wickets. Now this is going to be very interesting contest. How the batsmen are going to build up a partnership here. Are the bowlers who are going to dominate again? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर जो साझेदारियाँ हैं, पार्टनरशिप है, वो बहुत क्रूशियल रहेगा टीम एबीज यूपी वॉरियर्स के लिए। यहाँ एक साझेदारी बनाने की कोशिश करनी होगी। 33 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। Beautiful delivery again, magnificently played it towards the long on region. There is a protection in the deep though, but one run to be conceded on that occasion. Oh, they are playing very sensible cricket here because they knew that they have lost their captain, the Kamran Khan, who has been a phenomenal all-rounder for their team. Now he is back into the hut, back in the dugout. So the responsibility comes on these two shoulders of Ranjit and Sumit. क्या ये गेंद जरूर इन्हीं एक्स्ट्राज का फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ टीम को। एबीज यूपी वॉरियर्स, ये आज इन्होंने इस प्रतियोगिता में बहुत ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। 10PL सीजन 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पार्टनरशिप करते हुए सुमित एंड रंजीत। There's been a great delivery again. Just placed it down towards the short course region for a single. They will definitely be looking forward to build up a partnership with singles and doubles, and also meanwhile scoring the boundaries whenever they get a chance. Because if they throw away a wicket from here on, then they are going to be in a deep down trouble. ये गेंद बिल्कुल लेग स्टंप पर, पैरों पर गेंद, लेकिन उतने ही नियंत्रण से कर रहे हैं प्रथमेश गोसावी की। ये ओवर बहुत ही अच्छी रही है ओसामा, जिस तरह से इस ओवर में सिर्फ 6 रन देते उन्होंने 2 वैल्यूएबल विकेट हासिल किए हैं। Exactly. 3 overs gone, 24 for the loss of 3. It's going to be a very interesting contest, a crucial encounter, a close encounter. AP's UP Warrior taking on a global Westar, Global Link Westar Shipping. 59 run is the target set down by them. In reply, they have already lost 3 big wickets, including Kamran Khan, the captain himself. And the credit goes to Prathamesh, who has given a big breakthrough, big relief to the team. Once again, I would like to take this opportunity to welcome you all in this beautiful ground of Lal Bhai Contractor Stadium, Surat. SkyExchange.net presents the 10 Premier League Season 4, powered by Petroman. And also, I would like to thank all the sponsors who came forward to, contribute in this tournament, contribute in this World Cup of Tennis Ball. A special thanks to SkyExchange.net, the title sponsor, followed by Akar Chain, strategic timeout partner, DG Bits, Smart Chain, Socos.io, and Pepsi, UYP, Unleash Your Potential, and last but not the least, venue partner, Lal Bhai Contractor Stadium, Surat. Abhijit, I believe, this is not a platform where the low-level brands can come and participate. It's a high-level format. It's a high-level, intense tennis ball World Cup where, partners like SkyExchange.net and Pepsi are coming forward to, sponsor such big event. I completely adore, I completely commend about the efforts that have put on by Petroman to organize such a high-level tournament here at Surat. जी बिल्कुल, पेट्रोमैन्स ने पिछले कई वर्षों से हैशटैग गली से स्टेडियम तक ये जो बात कही है उस पर ही वो लाजमी रहे हैं। गली से स्टेडियम तक ये सारे खिलाड़ी आ चुके हैं और आज इनके लिए बड़े बड़े स्पॉन्सर्स तैयार हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म
यहाँ दिया है पेट्रोमैन इवेंट्स ने। आरिफ सर इन्होंने एक ग्रैंड इवेंट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इवेंट इज 10PL सीजन 4। And we have also witnessed a historical game in the last season, India versus Pakistan, an exhibition match. It never happened in the history of tennis cricket. How about that, Abhijit? ये पिछले सीजन का सबसे आकर्षण का केंद्र रहा था। जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम, जिनके पास इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस करने का, इंटरनेशनल मैचेस करने की जो उनकी सीरीज रही, इसमें टेनिस क्रिकेट का भी एक योगदान बढ़ चढ़कर बोला है। लेकिन यहाँ पर अगर मैच की तरफ देखें तो जैसे कामरान खान आउट होने के बाद रंजीत एंड सुमित ने बिल्कुल हमारी बात मान लिए। पार्टनरशिप, साझेदारियां इनटू पीसेस बनानी बहुत इंपॉर्टेंट। Beautiful delivery this time. I wanted to slash it hard towards the point region, but completely beaten up. Credit goes to Asif Sheikh. He's not allowing the batsmen to free his arms to go for some boundaries here. And exactly a sensible cricket like you mentioned. Ranjit and Sumit are doing a fabulous job, just rotating the strike, which is an essential factor now, because the required rate is not so high. It's just 7.44. Amazing, amazing chance. There was an effort, a great effort put down by the wicket keeper, but live could be set to the batsman. 28 for the loss of 3. That's the end of this over. 29 for 3. 29 पर 3. देखिए बहुत क्रूशियल था, पप्पू की कोशिश बहुत अच्छी थी विकेटों के पीछे। दोस्तों स्टेडियम में जो लोग गाने पर अच्छा डांस करके स्वैग दिखाएंगे, पेप्सी कहता है मोर फेज, लेकिन आपका मोर अगर डांस रहेगा तो जरूर आपको स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो आइए म्यूजिक की बारी है, परफॉर्म कीजिए और ले जाइए स्पेशल गिफ्ट। इट्स टाइम फॉर सम म्यूजिक। All right. Well, that's the Akar Chen strategic timeout, and post the timeout, the commentary box. सर ये देखिए गुजरात में मोर नाचा, किसने देखा? हमने देखा। वो देखिए क्या बात है। हाँ नवीन भाई, अमीन भाई, क्या बात है, माशाल्लाह आप तो बहुत ही अच्छा मोर डांस करते। ये दिल मांगे मोर, पेप्सी कहता है दिल मांगे मोर। वंस मोर अमीन भाई, एक बार और फिर से पूरे इनको फोकस कीजिए। स्पेशल कैप, सॉरी स्पेशल गिफ्ट। आइए अमीन भाई आइए, आपको देंगे हम एक स्पेशल गिफ्ट। ऐसे ही परफॉर्म अच्छा करते रहिए और स्पेशल गिफ्ट लेकर जाइए। Congratulations, Amin. You have won a merchandise from 10PL. And moving to the second half of this inning, the commentary box will be taken over by one of the legendary voices all the way from Goa, Mr. Harish Kakodkar. जी हाँ, स्कोर भले लो है लेकिन जो हौसले है वो बहुत हाई है। That is played on the onside। बहुत ही लाजवाब प्लेसमेंट रखी, एक को पूरा किया, एक को दो में तब्दील करना चाह रहे थे लेकिन वहाँ रोका अपने आप को और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है हरीश,
7.15 एंड 7.57 रिस्पेक्टिवली। ये देखते हुए बैटिंग साइड का एडवांटेज थोड़ा बन रहा है। इस बार स्विच लगाने का प्रयास, जबरदस्त अपील और आउट। पग बाधा की अपील और आउट होकर लौटना पड़ेगा रंजीत को, और तीसरे अंपायर की मदद। अमीन भाई आइए। अमीन भाई, जैसे डांस इंडिया डांस वगैरह में जजेस बोलते हैं, मालूम है कंटेस्टेंट को आप मुंबई आ रहे हो। अमीन भाई, आप शारजा आ रहे हो। आइए, अब आपको इनाम दिया जा रहा है 10 PL का एक सोवेनियर कैप। ये कैप पहनकर जब आप सूरत में चलोगे इतने खूबसूरत लगोगे। जी हाँ भाई, म्यूजिक बजाओ तो वो डांस करेंगे, फिर हम तोहफा देंगे। क्या बात है। यस, अब दे दीजिए, दे दीजिए। पीकॉक डांस। मोर बनी तन गाट करे मारू मोन बनी तन गाट करे, मोर बनी तन गाट करे मारू मोर बनी तन गाट करे, मोर बनी तन गाट करे। थर्ड अंपायर चल रहा है, पहला थर्ड अंपायर का मसला सॉल्व करते हैं, बाकी उसके बाद पॉपी भाई आएंगे। पॉपी भाई का भी गाना, ओ पॉपी जैम कैंडी। अरे सलमान भाई का स्टेप है, बाप रे। पॉपी भाई देंगे आपको, आउट होकर वापस जा रहे। थैंक यू डीजे। क्या डांस किया अमीन भाई। अमीन भाई, अगर वाकई में मैं कहता हूं, अगर मैं मास्टर टेरेंस लुइस या मैं रेमो होता ना, मैं एक ही चीज कहता, अमीन भाई आप मुंबई आ रहे हो। मतलब अमीन भाई, अगर श्रीदेवी जिंदा होती ना, आपके साथ वो गाने पे डांस करती। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, चनन चन चूड़िया। इरफान शेख साहब भी खुश है, वलसाड स्ट्राइकर्स। मोर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि 10 PL का नशा ही ऐसा है। इज गिवन आउट LBW, और बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई गेंदबाज प्रथमेश गोसावी को। फुल टॉस बॉल 3 है, बैटर है रवि बनारस। देखिए हरीश काकोड़कर जी, उत्तर प्रदेश में 2 रस है, हाथरस और बनारस, और इसके बीच में ये जो रवि बनारस है, ये बिल्कुल उस बनारस से ताल्लुक रखते हैं। 31 for the loss of 4 wickets. How do you see this match shaping up from here? और अब जो आबो हवा है वो भी थोड़ी सी हल्की सी ठंडक महसूस की जा रही है, क्योंकि अपने हाफ स्लीव टी शर्ट पहने हैं। स्कोर है इस वक्त 34 पर 4। मुकाबला जीतने के लिए
जो लक्ष्य है वो है टोटल 59 का, यानी कि 25 रन और चाहिए और ये ओवर चलता हुआ 5वां। प्रथमेश गोसावी अब तक 11 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं। ओ क्या खूबसूरत गेंद, बल्ले को चीरती हुई, जागते रहो का आदेश देती हुई सेटल हुई विकेट कीपर अविनाश रामपुड़े के हाथों में। ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर 5वां, 5 ओवर 34 रन 4 विकेट। Harish, next match is going to be a very big battle. SJA Shipping taking on Nexalis Oil and Gas. You know, so I think two big sectors, shipping industry taking on oil and gas. लेकिन एक चीज आप देखेंगे 18 बॉल में 25 चाहिए। ऑयल और गैस को ले जाने के लिए भी तो शिप चाहिए। तो नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का जो कंटेनर है वो एसजे शिपिंग ले जाएगी। आइए इंतजार करते हैं। नया ओवर लेकर आ रहे हैं आसिफ शेख। आसिफ की एक गेंद और इसको तान दिया है, रॉकेट की तरह बॉल आसमान में और यहां पर एक भव्य कैच। आउट हो गए रवि बनारस। बड़ा विकेट यहाँ पर रवि बनारस का। बनारस ने थोड़ा निराश किया, केवल 1 रन वहाँ पर रवि बनारस बना पाए और तुषार रणदीवे ने वो कैच लिया। काकोडकर जी, एक चीज तो है रणदीवे के बारे में, मराठी में अगर कहूँ तो विद्युत दिवा खाली रणदीवे ने दिवा विझवला आणि बाद झाला रवि बनारस। तो अब स्कोर 34 for 5। आसिफ को आते हुई सफलता मिली और नए बैटर है अब शहबाज। हाफ ट्रैकर बॉल क्लोज टू द बॉडी, पुल कर दिया, बॉल जारी है डीप मिड विकेट की और वहां गेंद को उठाया और लेकर थोड़ा दौड़ कर आ रहे थे। 1 रन का इजाफा स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 for 5। शहबाज अहमद ने अब 1 रन बनाया है और उनके पार्टनर है सुमित, ये इस वक्त खेल रहे हैं 7 पर। 7 बॉल 7 रन। सुमित दोंगड़े सामना करेंगे आसिफ शेख का। इस बार 2 कदम आगे आए, ड्राइव किया, 1 को 2 में तब्दील जरूर करना चाहेंगे और कर लेंगे। बड़े तेज कदम भागते हुए वहां पर सुमित दोंगड़े और उनके साथी बल्लेबाज शहबाज अहमद। वलसाड स्ट्राइकर्स के हमारे ओनर इरफान शेख साहब चाय की चुस्की का मजा लेते हुए। अपरकट मारने का प्रयास और वहां पर अंपायर मोहम्मद रफी। देखिए मोहम्मद रफी की एक आदत है, थोड़ा बाजू में गए, मौका वारदात पर देखा, जांचा, परखा, एनसी लिखी और आगे। 37 for 5, 22 to win. AB's UP Warriors। थोड़ी जल्दबाजी जरूर कर ली थी वहां पर बैटर ने, क्या उसकी जरूरत थी? थोड़ा अपने आप से नाराज, शॉट को ड्रिल करके दिखाया। लेकिन हरीश, एक चीज अच्छी हो रही है कि जब तक चौका छक्का नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से प्रेशर बढ़ता जाएगा ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग का AB's UP वॉरियर्स पर। जी हाँ, पूरी तरह से एंजॉय करते हुए ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। आरिफ भाई हमारे पास से गुजरते हुए, इनके साथ में उस्मान कमर्शियल मैनेजर,
ओवर पिच बॉल थी, लेकिन ऑफ साइड पर ड्राइव करने की बजाय ऑन साइड पर ड्राइव किया और 1 रन हासिल किया। ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ, कुल मिलाकर ओवर खत्म हुए 6 और 6 ओवर के बाद स्कोर अब अगर देखते हैं तो हो चुका है 39, यानी कि अब 12 गेंदों में 20 रन चाहिए HK। What a shot! What a swag! Pepsi और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग। Boss texting them. एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो कहते हुए निहाल तुसामत, उनके छोर को बदला गया है। उन्होंने अपना पहला ओवर कॉम्बॉक्स एंड से किया था, अब वहाँ पर तैयार होते हुए पिपलोद एंड से। You can see Arif Bhai with Sabir and Zamir Ahmed. You also see Mahendra Matre, owner of Deepak Dada प्रतिष्ठान। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से ताना है, बिल्कुल मिसाइल की तरह ऊपर, और एक आसान कैच यहाँ पर, एक और भव्य कैच। ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग एक और विकेट धराशायी करता हुआ आउट होकर वापस जा रहे हैं अब यहाँ शहबाज। Well, if you look at the scenario right now, just now you are talking about Pepsi having swag, but here AB's UP Warriors still need to wag. Otherwise, things will be very difficult for them. सौरभ दलवी ने कैच लिया, नया बैटर है इरफान। सबसे बड़ी बात यह है ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग अब एंजॉय कर रही है। ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग के 11 खिलाड़ियों के बीच में टेनिस बॉल इस तरह घूम रही है मानो टेनिस बॉल जहाज है, और 11 खिलाड़ी जो है ये 11 पोर्ट है। कभी केप ऑफ गुड होप और वहाँ से चले गए टांजानिया, वहाँ से आ गए वो जोहानिसबर्ग, वहाँ से गुजरते हुए श्रीलंका, वहाँ से आते हुए सीधा विशाखापट्टनम, और इस तरह गेंद घूम रही है और बल्लेबाज भी घूम रहे हैं। As you mentioned about Cape of Good Hope, that gives the way to open the entire world, and here batting unit requires some good hope. Yeah, absolutely. निहाल की गेंद इस बार छाती की ऊंचाई तक आती हुई अतड़ियों पर आक्रमण था, बल्ले के मुंह को खोला, खेला 1 रन के लिए। शॉर्ट पॉइंट पर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है, कुल मिलाकर 40। 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी मैच जीतने के लिए उन्हें 19 रनों की जरूरत है। So what do you think they should wait for the last over, or since they have lost 6 wickets, or they should go in this penultimate over, because keeping too many runs in the last over can be troublesome while chasing maybe somewhere around 15. और दूसरी चीज नेट रन रेट भी एक चीज है, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आई जहां नेट रन रेट काम में आएगा तो एक रन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस बार देख लिए ठोक डाला, स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड एंड सम, छक्का नहीं, 8 नहीं, 10। सुमित दोंगड़े What a shot that was, and what a time to play that shot. We were talking about net run rate. He says, forget net run rate. I'm here to win the match. इस बार मिस टाइम की आप देखें निहाल तुसामत की, एक खास बात है, एक आसान कैच अविनाश रामगुड़े ने ले लिया।
12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। नए बैटर है अली, और अली के कद काठी को देखते हुए ये लग रहा है कि वो गेंद को हवा में उड़ाएंगे। वैसे भी उन्होंने जो टी शर्ट नंबर पहन रखा है वो टी शर्ट नंबर माइकल जॉर्डन का है। 23 जंप स्ट्रीट बास्केटबॉल में पूरी दुनिया में विख्यात। और बॉल को जंप करना होगा, बल्ले को गेंद के ऊपर पंप करना होगा, तब जाके ये रन बनेंगे। 13 की दरकार है एबीज यूपी वॉरियर्स को। लेकिन क्या क्रिकेट हो रहा है हरीश, 6 लगा तो क्या हो गया, दूसरी गेंद पर मैं विकेट भी तो ले सकता हूँ। अगर बल्ला तलवार है तो गेंद जो है ये तोप खाना बन चुकी है। Yes, the match is happening like a seesaw. At one moment after that 6, it looks as if ABCUP Warrior are going in front. Suddenly a wicket falls, and then Global Link West Star Shipping are back in that match. 8 बॉल 13। नए बैटर है अली, सामना करेंगे निहाल तुसामत का। 8 balls 13 to win। इस बार गेंद को थोड़ा बाहर पिचअप कराया था, जगह पर खड़े रहकर खेलने का प्रयास। 7 बॉल 13 रन, 7 balls and 13 to win। हरीश, this ball is going to be the most important ball because if they don't score on this, then it will be all of a sudden 6 balls 13। Yes, true. And this ball, even if they get a boundary or even a 2 or 3 runs, that will be an added value. निहाल की अगली गेंद, और निहाल ने वहां पर अपना दर्जा दिखाया। मेरा औदा क्या है, ये दिखाने वाली गेंदबाजी निहाल तुसामत की एक शेरदिल गेंदबाज कहा जाएगा, क्योंकि 6 खाने के बाद विकेट लेना ये हर एक के बस की बात नहीं है। और निहाल तुसामत 2 ओवर 18 रन 2 विकेट, सुबह 2 ओवर 2 रन 2 विकेट, लेकिन ये फर्क है 6 गेंदों में 13, और बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने है घेरा। गणपति बापा मोरिया, मुझे आज भी याद है जब इंटरनेशनल मैचेस चलते हैं और भारत की स्थिति जब थोड़ी खराब रहती है, स्टेडियम में यही आवाज़ सुनाई देती है, खास करके वानखेड़े स्टेडियम में अगर आप चले जाएं। और अब आखिरी ओवर और इसको लेकर तैयार होते हुए गेंदबाज अभिजीत दुबे। अभिजीत दुबे के सामने, अभिजीत के सामने जीत, और जीत एक ऐसी जीत जो उन्हें 2 पॉइंट दिलाए। Well, the owner will also be Nihal after Nihal Tusamat's over. और देखिए, मैं जब यहाँ सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरा और आ रहा था, एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड पे मैंने एडवर्टाइज देखा, टशन का जश्न। ये बिल्कुल टशन का जश्न वाले 6 गेंदे हैं। अब टशन तो मजबूत है, लेकिन जश्न जो है कोई एक टीम बना पाएगी। Absolutely, when you are witnessing an electrifying atmosphere, the aura, the fervor on this ground, and especially during this match is so exciting. People want to see good cricket, and here is a match that is keeping everyone alive, awake, and eyes glued on to this last over. 6 balls 13 runs, बहुत ज्यादा बार और एक वाइड का अलग अंदाज मोहम्मद रफी का। 6 balls 12 runs। 6 बॉल 12। इरफान उल हक जो गेंदबाज है, कश्मीर से खास खेलने हमारे बीच आए हुए हैं। धरती के ऊपर का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर, और वहाँ से आए हैं इरफान उल हक। और देखिए, इरफान 6 गेंदों में 12 बना पाते हैं अथवा नहीं। 47 for 7 ABUP वॉरियर्स। एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर बल्ले को फूंक मारती हुई, बिल्कुल समझने नहीं दिया। अभिजीत दुबे ने गेंद को थोड़ा स्लो भी रखा था हरीश। Yes, he has changed his place, and if you can see, he has cut that ball as a leg cutter, which was difficult for the batsman to gauge, and the ball moving away from the right-hander, and it's sometimes even difficult for a batsman, so you can imagine how difficult it is for a bowler. अब 5 गेंदे 12 रन। महेंद्र हो सकता है तो हरेश क्यों नहीं हो सकता? आज हो गया। That is nice one, sir. और इस बार तान दिया है, देखिए सेफ शॉट है, नो मैंस लैंड में टप्पा खाई की गेंद, एक को पूरा किया, दूसरे की दौड़, बड़ी शिद्दत के साथ दौड़ते हुए 2 रनों को पूरा किया इरफान उल हक ने। और इन 2 रनों से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 49 for 7, यानी कि 10 रन चाहिए और गेंदें बची है केवल 4 बॉल 10। एक हाथ से खेल दिया था जब शॉट को फिनिश किया,
एक हाथ में बल्ला था। 4 बॉल 10 अभिजीत दुबे और इरफान उलक के बीच की ये जंग। वाइड बॉल, अब 4 गेंदे 9 रन। वाइड बॉल यहाँ महंगा पड़ रहा है। Absolutely, and you can see the reaction from the bowler. He thinks that the batsman has shuffled across and wide should not have been given. But even if the batsman shuffle across and the ball goes way outside of stump, batsman umpire is in absolute right jurisdiction to declare it as a wide. And here these wides are not only putting pressure on the bowler, he has to bowl an extra delivery, an extra effort in that last ball. 4 बॉल और 9 रनों की जरूरत है एबीज यूपी वॉरियर्स को। वापस वाइड बॉल, अब 4 बॉल 8 रन, एक रन खर्चा होता जा रहा है। जिस तरह देखिए, मैंने दोपहर को भी बताया था, वाइड बॉल और स्मोकिंग ये दोनों महंगे पड़ते हैं। जैसे सिगरेट की एक स्टिक जो है उसको अमेरिकन कैंसर स्टिक कहते हैं, आपकी जिंदगी के एक सेकंड को जैसे खत्म करती जैसी है, वैसे वाइड बॉल जो है, एक वाइड बॉल यहाँ विजय की उम्मीदों को धूमिल करते हुए। Absolutely, it's like a termite which kills your wood without knowing yourself at home, and by the time you know, everything is over. इस बार ड्राइव कर दिया, 1 रन पूरा किया इरफान उलक ने। दूसरे की दौड़ लगा चुके इरफान, स्वयं बॉलर है, तेज भागते हुए, और यहाँ पर 2 रन, यानी कि अब गेंदें बची है 3 और रन चाहिए 6। So do you think they require a boundary or they can do with doubles? I think not every ball you can find to go for doubles, so somewhere a boundary is required. इरफान उलक 4 बॉल में 5 रन। इरफान उलक इस तरह रन बना रहे हैं मानो फिल्म रॉक स्टार का रणबीर कपूर कह रहा है, साड़ा हक एते रख, रन बनाने का मेरा हक है और मैं बनाऊंगा। 3 बॉल 6। अब यहाँ पर मोहम्मद रफी की स्टाइल है, थोड़ा टहलने चले जाते हैं। 2 बॉल 6 रन। अभी अच्छा कमबैक है हरीश। I think comeback is better than setback. Absolutely, yeah. And the greatest comebacks we have seen many a times. Sixes have been hit in many of the tennis ball. Forget a tennis ball. International cricket has also seen the sixes being hit of the last or the penultimate ball. 2 बॉल 6 रन और डेड बॉल। अंपायर मोहम्मद रफी अपने दोनों का हाथों को इस तरह वो हिलाते हैं जैसे घड़ी का जो पेंडुलम है वो हिलता है। रफी की अलग अलग मुद्राएं। Everyone remembers Javed Miada's famous 6, but I still remember the 6 of Dinesh Karthik, where whole of Bangla was celebrating that they are the champions of Asia Cup, and here comes Dinesh Karthik and it's a 6 in the covers. दो बॉल 5 रन, वाइड बॉल अभिजीत दुबे। काश वो अब सीधी गेंद करे। 2 बॉल 5 रन। इरफान उलक तो अब वहां पर क्रीज बॉक्स में बॉल के मूवमेंट को देख रहे हैं। बॉल क्या अंगड़ाई ले रही है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के जंगल का एनाकोंडा। देखिए किस तरह घूम रही है गेंदें। अब 2 बॉल 5। That's actually way too much here, and this ball also deviating too much, but deviating outside the road, which is not required because it might create an accident here for the bowling unit. 2 balls 5 runs. इस बार उठा दिया, कैच आउट का खतरा और अब इक्वेशन 1 बॉल 5 रन। इरफान उलक का विकेट ले लिया वहां पर। अरे पापा आपल्या इकडे हा वाईडच नाहीये। आसिफ शेख ने कैच लिया और एक और विकेट का पतन। What a comeback! What a comeback! इरफान 5 पर आउट हुए, अब नए बैटर हैं।
कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति, अब देखने वाली बात है, 1 बॉल 5 रन। ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का जो जहाज है आज सुबह से निकला है भ्रमण पर, और अब यहाँ पर आखिरी गेंद 1 बॉल 5। एक अच्छा काम ये भी किया अभिजीत दूबे ने विकेट लेकर, क्योंकि इस टूर्नामेंट के नियमानुसार जो आईसीसी का नया नियम अक्टूबर से आया है, नए बैटर को अब स्ट्राइक लेनी है। Sir, and also, since I am hailing from Goa, I am also hailing from Goa. Goa meaning go, means come back. Can we see a comeback here from UP as well? No, लेकिन डेफिनेटली गो गोवा, मतलब गो एंड हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है कृष्णमूर्ति यादव के लिए आज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा शॉट खेलने का मौका है। और यहाँ पर बॉल नीचे रही है। ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने 4 रन से ये मुकाबला जीत लिया। अभिजीत दूबे वहां पर। Look at the jubilation, look at the excitement. They are ecstatic, they are happy. Why not? This match was a lost cause. They have fought like warriors against AB's UP Warriors. Globe Link West Star Shipping, congratulations सुमेश जी, and what a performance. अभिजीत दूबे की भी तारीफ करनी होगी। इतने वाइड करने के बाद एक शेर का जिगरा चाहिए होता है लास्ट ओवर करने का, और फाइनली उन्होंने अपनी टीम को फिनिश लाइन के आगे ले गए। अभिनंदन ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग, hard luck AB's UP Warriors. And it was an honor for me, sir, to be doing the commentary with the voice of India, and definitely few more opportunities will come on my side, and I will treasure it for my life. दोस्तों आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. We are indeed thankful to all our sponsors, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, and we are also thankful to our official partner Socos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP, Unleash Your Potential, and venue partner Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium. आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर भव्य सत्कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और पहला सत्कार हम यहाँ पर करने जा रहे हैं मिस्टर जमीर अहमद, टीम ओनर हेलो जी। हमारी लीग के चेयरमैन आरिफ भाई ने अभी अभी जमीर भाई का
थैंक यू। जमीर अहमद साहब SI गोवा सुपर किंग्स के ओनर, इनका एक भव्य सत्कार। माशाअल्लाह कल आपने जो स्पीच दी है हम काफी मुतासिर हुए हैं जमीर भाई, और वही शाम वाला डायलॉग एक बार फिर से, खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, पूछना है तो तेरे जमीर से पूछ। जमीर अहमद साहब आपका भव्य सत्कार। आइए अब अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं महेंद्र जी मात्रे, दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली। दादा आपण भाईंच्या पाठीशी उभे राहिलात आणि खरंच